FBR کا بڑا وار، استعمال شدہ درآمدی موبائل فونز مہنگے ہونے کا خدشہ ہے۔ ویلیویشن میں نمایاں اضافہ، کچھ ماڈلز پر $110 تک بڑھ گئے ہیں۔ نئی ویلیوز کا فوری اطلاق، کسٹمز کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ FBR کا بڑا فیصلہ، پرانے درآمدی موبائل فونز مہنگے ہونے کا امکان۔ نئی ویلیویشن رولنگ 2026-2070 نافذ، پرانی رولنگ منسوخ کر دی گئی۔ FBR نے استعمال شدہ درآمدی موبائل فونز کی کسٹم ویلیو میں اضافہ کر دیا۔ سرکولر کے مطابق استعمال شدہ ایپل، سیمسنگ، گوگل پکسل اور ون پلس سمیت کئی برانڈز شامل ہیں۔ صدر کراچی الیکٹرانک مارکیٹس ڈیلر محمد رضوان کا کہنا ہے کہ نئی ویلیویشن پر ڈیوٹی لگنے کے بعد قیمت میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا۔ ڈیوٹی میں تقریباً کوئی $100 سے زیادہ اور کم سے کم جو ہے $25 جو ہے اضافہ کیا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل عمل ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہے دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز سے جا رہی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے موبائل اور اس سے کاروبار لوگ کر رہے ہیں۔ اور آپ پاکستان سمجھ سکتے ہیں، پاکستان جو ہے ترقی یافتہ ممالک میں نہیں شامل ہے، ترقی یافتہ میں ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہے موبائل کی جو ڈیوٹی انہوں نے کری یہ سب سے زیادہ غلط ہے۔ ان کو جو ہے ڈیوٹی کم سے کم کرنی چاہیے تاکہ موبائل ہر کسی پہنچ میں ہو۔ دوسری جانب FBR سرکولر کے مطابق آئی فون 15 پرو میکس کی قیمت $460 سے بڑھ کر $505، آئی فون 15 پرو میکس $82 مہنگا کر کے $472 اور آئی فون 14 پرو اور آئی فون 14 پرو میکس $53 مہنگا کر کے $413 مقرر کر دی گئی۔ آئی فون 13 پرو میکس $79 مہنگا کر کے $374 اور آئی فون 12 کی ویلیو $36 مہنگا کر کے $156 مقرر کر دیا گیا۔ سیمسنگ گلیکسی S23 الٹرا کی ویلیو $50 مہنگا کر کے $305، سیمسنگ گلیکسی S23 کی ویلیو $110 مہنگا کر کے $250۔ ساتھ ہی سیمسنگ گلیکسی S22 کی ویلیو $50 مہنگا کر کے $130، سیمسنگ گلیکسی S21 کی ویلیو $60 مہنگا کر کے $100 مقرر کر دی گئی۔ گوگل پکسل 9 پرو XL $88 مہنگا کر کے $348 اور گوگل پکسل 8 پرو $27 مہنگا کر کے $215، گوگل پکسل 7 پرو $86 مہنگا کر کے $105 مقرر کر دی۔ ذرائع کے مطابق درآمدی فونز پر ٹیکس اور ڈیوٹی بڑھنے کا امکان ہے۔ صارفین کے لیے استعمال شدہ موبائل فونز مزید مہنگے ہونے کا خدشہ ہے۔ FBR کے مطابق اقدام کا مقصد انڈر انوائسنگ کا خاتمہ ہے۔ اشرف خان، City 21۔ استعمال شدہ موبائل فونز کی ویلیویشن میں اضافہ، تاجر برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر منہاج گلفام نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہا فیصلہ تاجروں کے لیے مشکلات اور کاروباری نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ ویلیویشن میں اضافے سے موبائل فونز مہنگے، خرید و فروخت میں کمی ہوگی۔ جس طرح سے حکومت پاکستان نے جو استعمال شدہ موبائل فون ہے اس کی جو ڈیوٹی ہے، اس کی ویلیویشن جو ہے اس میں اضافہ کیا ہے، تو ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ جو پرانی ویلیویشن تھی اس کو برقرار رکھا جائے۔ یوز موبائل جو ہے اس کا کاروبار کرنے والے ہمارے جو تاجر ہیں وہ 60 سے 70% طبقہ جو ہے وہ یوز موبائل کا کاروبار کرتا ہے، استعمال شدہ موبائل کا کاروبار کرتا ہے، اور ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں۔ دنیا کے صف اول ممالک میں اگر مقابلہ کرنا ہے ہمیں، تو ہمیں اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اور جو ڈیجیٹلائز پاکستان کا خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں جو ویلیویشن ہے اور جو گیجٹس یا جو موبائل فون انڈسٹری ہے، تاجروں کو ایک ریلیف دینا پڑے گا۔ ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیوٹی سٹرکچر ہے اس پر نظر ثانی کی جائے تاکہ تاجروں کو ریلیف مل سکے، اور سب سے زیادہ ٹیکس ریونیو جنریٹ کر کے دینے والی انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہو، اور جو ہمارے تاجر ہیں وہ بھی جو ہیں وہ خوشحال ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، بغیر رجسٹریشن کے رہنا پڑے گا مہنگا، کرایہ دار اور مالک مکان رجسٹریشن نہیں کرائیں گے تو جیل جائیں گے۔ سندھ میں عارضی رہائشیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، ضلع ساؤتھ پولیس نے 39 مقدمہ درج کر لیے ہیں۔ اعداد و شمار City 21 کو موصول ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شاہ رخ شاہ سے۔ شاہ رخ، بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں اب سندھ اور کراچی میں بغیر رجسٹریشن کے لیے کرایہ دار اور مالک مکان کے لیے رہنا اب ہو گیا ہے مشکل بیسیکلی، اور جو تھانے میں بغیر رجسٹریشن کے جو لوگ ہیں جو کہ ٹیننٹ اور مالک مکان ہیں وہ بغیر رجسٹریشن کے پولیس ویریفیکیشن کے جو ہے وہ اب نہیں رہ سکیں گے، اور اگر رہے تو جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اب تک ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اگر بتاؤں تو پورے جو ہے وہ ضلع میں تقریباً 39 جو ہے مقدمات درج ہو چکے ہیں ایک ماہ میں، جبکہ 54 جو ہے وہ گرفتار جو ہے وہ افراد کر لیے گئے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ صدر کی حدود میں جو ہے وہ گرفتاریاں اور کیسز
केसेस दर्ज किए गए हैं, उसके बाद क्लिफ्टन और डिफेंस में मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। ये वो अदालत शुमार है जो सिटी 21 न्यूज़ को मौसूल हुए हैं, जबकि पुलिस हुकाम ने ये जो है वो बावर करवाया है कि इनके खिलाफ जो है वो मजीद कार्रवाइयाँ तेज की जाएंगी और बगैर रजिस्ट्रेशन और मशकूक अफराद को घर देना और उनको जो है वो रिहाइश पजीर करवाना कानूनी तौर पर सख्त जुर्म है और सिंध रेजिडेंशियल एक्ट के तहत इन तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा चुका है और भारी जो है वो इनके ऊपर फाइन्स भी किए हैं और मजीद SSP ने कहा है कि मजीद इनके ऊपर कार्रवाइयाँ जो है वो तेज की जाएंगी। जी ठीक है, मजीद कार्रवाइयाँ भी तेज़ की जाएंगी। शाहरुख आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SHOs के तकर्रुर तबादले। इंस्पेक्टर शाहिद ताज को अजीज़ाबाद में NK इंडस्ट्रियल एरिया तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर जाहिदुल्लाह लोधी गुलबर्ग से न्यू कराची के SHO मुकर्रर कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर नदीम अहमद को गुलबर्ग थाने का SHO तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आवान को अजीज़ाबाद थाने में SHO लगा दिया गया है। आगाह करें आपको, तकर्रुर तबादलों के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर शाहिद ताज को अजीज़ाबाद से NK इंडस्ट्रियल एरिया तैनात कर दिया गया। इंस्पेक्टर जाहिदुल्लाह लोधी गुलबर्ग से न्यू कराची के SHO मुकर्रर। इंस्पेक्टर नदीम अहमद को गुलबर्ग थाने का SHO तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अवान को अजीज़ाबाद थाने में SHO लगा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर शाहिद ताज अजीज़ाबाद से NK इंडस्ट्रियल एरिया तैनात। इंस्पेक्टर जाहिदुल्लाह लोधी गुलबर्ग से न्यू कराची के SHO मुकर्रर। इंस्पेक्टर नदीम अहमद गुलबर्ग थाने के SHO तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अवान को अजीज़ाबाद थाने में SHO लगा दिया गया है। महकमे खुराक सिंध में अरबों रुपए की गंदम खुर्द-बुर्द का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया है। सरकारी गोदामों से हज़ारों गंदम की बोरियां गायब, जबकि मिट्टी भरकर जालसाजी का इंकशाफ भी सामने आया है। दर्जनों अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, बरतरफियां और शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आजिर जमाली की रिपोर्ट देखिए। गंदम स्कैंडल बेनकाब। महकमा खुराक में बदउनवानियों का बड़ा केस सामने आ गया। महकमा खुराक सिंध में अरबों रुपए की गंदम खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है, जहां सरकारी गोदामों में रखी हजारों बोरियां मुबैना तौर पर गायब कर दी गयी। ज़राए के मुताबिक 2022 और 2023 के दौरान गोदामों से गंदम गायब करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए और बाज़ मुकामात पर बोरियों में मिट्टी भर कर रिपोर्ट दी गई कि गंदम बारिश से खराब हो गई। महकमा खुराक ने कार्रवाई करते हुए 15 से जायद फूड कंट्रोलर्स, सुपरवाइजर्स और दीगर अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, जबकि 30 से जायद अफसरान को शोकास नोटिस जारी किए गए हैं। महकमा खुराक की जानिब से मुलव्विस अफसरान से करोड़ों रुपए की रिकवरी के लिए एंटी करप्शन हुक्काम को भी खत लिख दिया गया है। सूबाई वजीर खुराक मखदूम महमूद जमान की हिदायत पर बदउनवानी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का दायरा वसी किया जा रहा है और मजीद अफसरान के खिलाफ भी एक्शन का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आजिर जमाली, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी बरकरार। 100 इंडेक्स 1576 पॉइंट्स कमी से 1,71,579 पर बंद हुआ। अहम शोबों में शेयर्स की फरोख्त का दबाव देखा गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। फरोख्त के दबाव से स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार, सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ, जहां फरोख्त के दबाव के बायस मार्केट नीचे आ गई। 100 इंडेक्स 1,576 पॉइंट्स की कमी से 1,71,579 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,71,254 कम तरीन सतह तक भी गिर गया। मार्केट में ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कमर्शियल बैंक, तेल और गैस की तलाश करने वाली कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, बिजली पैदा करने वाले इदारे और रिफाइनरी सेक्टर में नुमाया फरोख्त देखी गई। हैवी वेट स्टॉक्स बशमूल हबको, मारी, OGDC, PPL, HBL, MCB, मिजान बैंक और नेशनल बैंक के शेयर्स भी मनफी जोन में ट्रेड करते रहे। माहिरीन का कहना है कि मार्केट में गैर यकीनी कैफियत बरकरार है, सरमायाकार मोहतात अंदाज में फैसले कर रहे हैं। जी, वही गैर यकीनी सूरत हाल है। इसकी वजह ये भी है कि अभी जो आइंदा जो स्टेट बैंक की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी आने वाली है, उससे भी लोग तजर्बु का शिकार है कि आया वो अगर 1-1.5% बढ़ गया तो मार्केट के लिए प्रेशर बनेगा। वो सारी इन्वेस्टमेंट की जो मालियत है वो सारी बैंकों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से थोड़ी सी मंदी नजर आ रही है हमें। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,73,155 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
नादरा की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए जदीद खुदकार निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया है। डिफेंस मेगा सेंटर में सेल्फ क्यूसिक सिस्टम के तहत अब शहरी खुद अपना शनाख्ती कार्ड बना सकेंगे। हुकाम के मुताबिक रोज़ाना हज़ारों शहरी इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। सहूलत ही सहूलत, आसानी ही आसानी। नादरा ने शहरियों के लिए खुदकार निज़ाम मुतारिफ करा दिया। डिफेंस में कायम नादरा मेगा सेंटर में शहरियों की सहूलत के लिए खुदकार सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया, जिसके तहत शहरी सेल्फ कियोस्क के ज़रिए अपनी दरख्वास्त खुद मुकम्मल कर सकते हैं। शहरियों ने सेल्फ कियोस्क सिस्टम के आगाज़ को खुशाइंद करार देते हुए कहा, पाक आईडी के साथ साथ खुदकार निज़ाम की सहूलत बड़ा मजबूत कदम है। वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब का बहुत शुक्रिया और DG नादरा का बहुत शुक्रिया। इस इनिशिएटिव से लोगों में बहुत जो है अवेयरनेस आई है और जो है आसानी पैदा हो गई है। नादरा मेगा सेंटर में शहरियों की रहनुमाई के लिए हिदायतनामा भी आवेदा किया गया है, जबकि अमला भी रहनुमाई के लिए मौजूद रहता है। कैमरामैन अहमद के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। मेयर कराची की हिदायत पर बरसों बाद लियाकताबाद की अहम शाहराह SM तौफीक रोड की तामीर का आगाज़ कर दिया गया। ताजरों और शहरियों ने फैसले को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि उससे आमदोरफ्त के मसाइल में कमी आएगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। SM तौफीक रोड की तामीर शुरू, शहरियों में उम्मीद की किरण रोशन। लियाकताबाद की मसरूफ तरीन सड़कों में शामिल SM तौफीक रोड बरसों से टूट फूट का शिकार थी, जिसके बाइस शहरियों, ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना था। मेयर कराची की हिदायत पर अब इस अहम शाहराह की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। ताजिर रहनुमा हसीन कुरैशी का कहना है कि मेयर कराची का फैसला खुश आइंद है। सड़क काफ़ी अरसे से खस्ता हाल थी, जिससे कारोबार भी मुतासिर हो रहा था। माजी में नाकिस तामीराती काम के बाइस सड़कें चंद माह बाद टूट फूट का शिकार हो गईं। बारिश के दिनों में पानी जमा होने के मसले को भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। अभी मेयर कराची ने जो फैसला किया और काम शुरू कराया, हम उसको सराहते हैं, खुश आइंद है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से हम चाहते हैं कि इसमें मेयारी काम हो, मेयारी काम का मतलब ये है कि अभी आपने देखा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हमने देखा कि सड़कें धसी हुई हैं, रक्शे उल्टे हुए हैं, लोग उसमें फंसे हुए हैं, तो ये मार्केट एरियाज है, इस यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ना हो और निकासी आपके लिए एक बेहतरीन सड़क हो। मार्केट के ताजिरों का कहना था कि मुर्तज़ा वहाब से दरख्वास्त करते हैं कि क्वालिटी पर कोई समझौता ना किया जाए, मयारी सड़क बनाई जाए। बस ये छोटी सी गुजारिश है, सड़क बनती जरूर है लेकिन इसमें गड्ढे ये कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, तो कोशिश है, इनसे रिक्वेस्ट है, अच्छी सड़क बनाए ताकि लाइफ टाइम अच्छा चले। अब ये खड्डे हो जाते हैं, इसमें जान का नुकसान हो जाता है, खड्डे पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हवाएं फंस जाते हैं, बड़े मामला हो जाते हैं, तो कोशिश से सड़क बना रहे जरूर है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। शहरियों और ताजिरों को उम्मीद है कि SM तौफीक रोड की तामीर से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी बल्कि इलाके में कारोबारी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। ताबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हमजा ताबानी की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के एजाज़ में अशाइया का एहतमाम किया गया। तकरीब में सूबाई वज़रा सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह, सईद गनी, अरकान कौमी असम्बली, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, असद नियाज़ी समेत ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइए। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं तबानी हाउस में। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत आपको सुबह से मैं सर खुश आमदीद कहते हैं, आपका अपना घर है सर। क्या तिजारत कारोबारी शख्सियात से आज आपकी यहाँ पर मुलाकात हुई है? दूसरा आपसे सवाल हम ये भी करेंगे कि सिफारती जो कोशिशें हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, सर क्या कहना चाहेंगे? आज ये कारोबार की डेलीगेशन से मिलकर कैसा लगा और इस पर क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा और हमजा ताबानी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा डिसेंट और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया। यहाँ पे डिनर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे लोग थे, बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी के वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं और जो करोड़ों अरबों रुपए का बिज़नेस जो है अपने मुल्क में कर रहे हैं, अरबों रुपए का टैक्स दे रहे हैं। तो इनमें आके बड़ी खुशी हुई, बड़ी अपनायत का एहसास हुआ और मुहब्बे वतन लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, अच्छी बातें हुई। तो इंशाल्लाह आगे सब ने मिल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो इंशाल्लाह जदोजहद करनी है और इस मुल्क को अजीम बनाना है। बिल्कुल जी, इस मुल्क को अजीम बनाना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हम सबको मिलकर जो है पाकिस्तान की तरक्की में अपना कलीदी किरदार जो है वो अदा करना है। जी।